بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ پاکستانی معاشرے میں سماجی اور معاشی سطح پر ناانصافیاں عروج پر ہیں۔ معاشی اونچ نیچ نے معاشرے کے توازن میں بری طرح بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ معاشی ناہمواریوں نے سماجی اونچ نیچ کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی رویوں کی بدولت معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکمران اشرافیہ نے اقتدار کی غلام گردشوں کو ہی صرف اپنا مسکن بنا رکھا ہے، اور عوام ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کہ جیسے ان سے بیکار لی جا رہی ہو، اور وہ پاکستانی قومیت کے حامل نہ ہوں بلکہ کسی دشمن ملک سے آئے ہوئے جنگی قیدی ہوں۔ پاکستان کا عدالتی نظام اسی طرح کے نتائج دے رہا ہے جس طرح کے کردار اور فہم و فراست کے حامل ہمارے حکمران ہیں یا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے منتخب نمائندے ہیں۔ یہ منتخب نمائندے وہ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، جن سے ہر عمل، ہر سیاسی پارٹی اور ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ پیار کرتی ہے۔ اس حکمران اشرافیہ نے اپنی اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں اور عوام کو تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ دین اسلام کے طلوع سے پہلے کے معاشرے کی طرح معاشی، سماجی، عمرانی انصاف کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ جس نام نہاد مہذب دنیا میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو سوشل میڈیا نے گلوبل ولیج بنا رکھا ہے، اور ہمارے ملک کی عدالتوں کی کارکردگی دنیا کے 130 ممالک میں سے 126 نمبر پر رہی، یعنی کہ ہم 130 میں سے 126ویں نمبر پر رہے۔ یہ قرآن کی حامل قوم اور ایک نظریاتی مملکت مدینہ ثانی ریاست کا یہ حال ہے۔ جب عدالتیں درست طور پر کام نہ کر رہی ہوں، جب معاشی اور سماجی ناانصافیاں عروج پر ہوں، جب مہنگائی کا طوفان ہو، تو اس طرح کے حالات میں دوستو حکمران خود تو بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہوں اور ان کی پراپرٹیز لندن، امریکہ اور یورپ میں ہوں، اور عوام الناس کو نوچنے کے لیے یہ عدالتی نظام، یہ حکومتی ادارے دن رات خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا گیا۔ جمہوریت کے نام پر نام نہاد اسلام پسندوں اور نام نہاد لبرلز نے عوام کو نفسیاتی مریض بنا رکھ چھوڑا ہے۔ عوام کو بھیڑ بکری سمجھنے والی حکمران اشرافیہ نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا چھوڑا ہے جہاں عدالتیں، حکومتی ادارے کرپشن کی اماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ وڈیرا شاہی سرمایہ داری نے عوام کو سانس تک لینے سے محروم کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ہماری جو ہے وہ ملاقات قید تھی آئی جی جیل خانہ جات محترم جناب مرزا شاہد بیگ صاحب سے، تو ہم ایک وفد کی صورت میں ان کے ساتھ ملے۔ انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے ہمیں بریف کیا اور بتایا کہ جناب کس طریقے سے اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے، سینٹرلائز سسٹم کیا گیا ہے، اور پنجاب کی جتنی بھی جیلیں ہیں 40، 41، 42، اس میں سے 26 جیلوں میں اب تک بالکل اسی طرح سیف سٹی کی طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ وہاں کا کنٹرول روم کا بھی ہم نے معائنہ کیا، دیکھا اس کو، وہاں سے آگاہی حاصل کی، وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ لاہور میں بیٹھ کر ملتان کی جیل کے مختلف جو حصے ہیں اس کا براہ راست جو ہے وہ یہاں پر مانیٹر اس کا ہو رہا ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ منڈی بہاولدین کی جیل کو، یہاں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ ملتان کی جیل، جیلن کی جیل، پنڈی کی جیل کو دیکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکی آنکھ سے کانشیسنس تو پیدا ہوتی ہے۔ باقی اس کے رزلٹس کیا آئیں گے یا آ رہے ہیں، یا سیف سٹی کے
जो कैमरे लगे थे उसके क्या रिजल्ट्स निकले हैं ये एक अलग बहस है। लेकिन एक बात है कि मिर्जा साहब जो हैं आईजी साहब, उन्होंने जिस अंदाज में ब्रीफ किया, मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि ये सिविल सर्विस के नहीं हैं, ये अपने ही महकमे के हैं, भर्ती हुए थे एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल भर्ती होंगे, उसके बाद ये प्रमोशन करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, अपने महकमे की एक एक रम्स को जानते हैं, एम्प्लॉइज के मसाइल को भी जानते हैं और कैदियों के साथ होने वाली ज्यादतियों से भी आशना है। तो इस हवाले से हमारे दोस्त मोहम्मद नासिर इकबाल खान जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस मुलाकात का अरेंज किया और हमारे दोस्त बुकला दोस्त साफी दोस्त भी इस वक्त में शामिल थे। उनसे बड़े जो है वो तेज तर किस्म के मुश्किल सवाल भी किए गए और उन्हें हर सवाल का खन्ना पेशानी से जवाब दिया, बल्कि वो कहते हैं आप खुलकर बात करें। यूं इस मीटिंग में उन्होंने जिस तरह हमें आगाही दी, मुझे काफी हद तक हौसला मिला कि अभी मायूस होने की जरूरत, मायूस तो खैर मुसलमान होता ही नहीं, ना ही उसे होना चाहिए। अगर मायूस होगा तो उसका मतलब यह है कि उसने अपने रब को रब नहीं माना। तो हमें वहां पर सुपरिटेंडेंट जेल इंचार्ज जो थे उन्होंने हमें उनके कंट्रोल रूम दिखाया, मीडिया जो सेंटर था वो दिखाया, जहाँ पे ये कॉल वसूल करते हैं, कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है, एमरजेंसी कॉल, वो दिखाया, और ये जो कैमरेज लगाकर पंजाब भर की जेलों को मॉनिटरिंग किया जा रहा था ये दिखाया। मिर्जा साहब ने, मैंने जैसे कहा क्योंकि इनकी गर्दन में सरिया नहीं था, ये एक बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर है, क्योंकि इसी डिपार्टमेंट से प्रमोट होकर इस डिपार्टमेंट के हेड बने हैं, इसलिए ये मुझे बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर कि ये बिल्कुल पाकिस्तान मेड किस्म के जो है ना वो ऑफिसर है। और इसलिए क्योंकि जो CSP ऑफिसर होता है वो मुख्तलिफ महकमों से आता है और मुख्तलिफ महकमों में घूमता घुमाता चला जाता है, उसको उस डिपार्टमेंट के जो रूह होती है, उसकी थीम होती है, उसके हवाले से उसे आगाही नहीं होती, वो बस अपना पीरियड गुजारने आता है 2-3 साल और चला जाता है। लेकिन इनकी जितनी ग्रिप मैंने देखी है, और ये काफी तकरीबन 3-4 साल से लाहौर में अपने ऑफिस में है, IG पंजाब जेल खनाजात की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो कंप्लेंट्स आती हैं, हमने कहा जी जाहिर में 100% तो नहीं कोई चीज़ हो सकती, लेकिन जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उसका भी हम इतराक रखते हैं, उसका मदावा भी करते हैं और कोशिश होती है कि से मामलात को सही करें। उनकी फिर जो है वो रिकमेंडेशन पर सुपरिटेंडेंट जेल नूर साहब हैं, उनसे हम मुलाकात के लिए जेल के अंदर पहुंचे। उन्होंने भी हमें बड़ी तफसील के साथ ब्रीफ किया और जेल का फिर हमने दौरा किया, जेल के हम किचन में गए, जेल का खाना भी हमने खाया जो कैदियों के लिए बना हुआ था, रोटी, उस दिन दाल दोपहर के वक्त थी, शाम को किचन में जो है वो मुर्गे के गोश्त की तैयारी हो रही थी, वो भी हमने देखा। बहुत साफ माहौल था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये इतना साफ सुथरा माहौल कहीं नहीं मैंने देखा। होटलों में तो बिल्कुल नहीं ना होता, क्योंकि होटल की बैक साइड पर जो किचन बने होते हैं उसका हमें आगाही हो चुकी है, फूड अथॉरिटी ने जिस तरह छापे मारे और देखा है। उसके साथ साथ मस्जिद, उसके साथ साथ इनका हॉस्पिटल देखा है, इंतहाई साफ सुथरा। और फिर हम बच्चों की जेल में गए जहाँ बच्चे कैदी थे, मैंने कोई 10-12 बच्चों से फर्दन गुफ्तगू की। एक बच्चे से पूछा कि तुम किस जुर्म में आए, तो उसने कहा जी मैंने 302 के जुर्म में आऊं, कत्ल कहीं और किसी और ने किया था, मेरा नाम वैसे ही डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने हमारी बरादरी की दूसरी बरादरी के साथ दुश्मनी है। 12 साल का बच्चा होगा। एक बच्चे से पूछा तो उसने कहा जी मैं डकैती में आया हूँ। मैंने कहा तुमने डकैती की? कहता हाँ जी मैंने की थी, लेकिन फौरन ही पकड़ा गया। एक लड़के से मैंने क्वेश्चन किया भाई तुम क्यों आए, उसने कहा जी मैं मोटरसाइकिल मेरे दोस्त के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था, वो मोटरसाइकिल वो चला रहा था, वो चोरी का था, वो पकड़ा गया, साथ में मुझे भी दाग लिया गया। इसी तरह उन बच्चों को देखकर यकीन जानिएगा, काफी सारे बच्चे थे वहां पर, उनका बड़ा साफ सुथरा कमरे थे, वहां पर वो उनके बिस्तर लगे हुए थे और साथ उस वक्त तो खाने का टाइम था, वो खाना खा रहे थे और साथ उनका स्कूल बना हुआ है। और बड़ी मुझे खुशी हुई कि यूनिवर्सिटीज़ के जो
स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप करने वाले साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजी के लोग वहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ा रहे थे, मैंने देखा। तो बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट है कि जेल के अंदर बड़ा जुल्म होता है, तो वो बात ठीक है कि अमीर आदमी को प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन अमीर आदमी ने तो जाना होता है एहतसाब अदालतों में, वो अरबों रुपए खा के आता है, उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिलती है। ये जेलें तो आम लोगों के लिए कुछ चोरी चकारी वाला या कत्ल वाले केस में आया हुआ है। तो मैं जो बात करना चाहता हूं, सफाई भी बड़ी थी, बेहतरीन माहौल था, ह्यूमनली जो पॉसिबल था वो बहुत अच्छा था। मुखैर हजरात ने भी वहां पर काफी एकोमोडेट किया हुआ है। वहां पर एक बात ये सामने है कि इनको मजलूम समझना शुरू हो जाता है। पहले जब वो जुर्म करता कहते इसे पकड़ो, जब इसे पकड़कर हम जेल में डालते हैं तो कहते हैं वो कि ये कैदी बेचारा मजलूम है, इसको रिहा कराओ। मुखैर हजरात आकर उनके पैसे देकर उनकी जो होती हैं जुर्माने उनको रिहा करवाते हैं। सारी बातें ठीक थी जो कल डिस्कशन में हुई, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी कैदियों को देखा मिला, क्योंकि ये एहतसाब नैब वालों की तो जेल के लोग यहाँ पर नहीं थे जिनसे हम मुलाकात हमारी एक्सेस थी। गरीब लोग, आम लोग, उनकी शक्लों से लग रहा था कि ये इंतहाई गरीब फैमिलियों से। मुझे वहां पर कोई पॉश एरिए के लोग बच्चा वहां नजर नहीं आया। जितने भी बच्चे क्राइम से थे जो नालकोट जेल में, सब बच्चे थे गरीबों के बच्चे, बुरे हाल उनके, की शक्लें बता रही थी, उनकी सेहत बता रही थी। वजह क्या है? गुर्बत, माशी नाहमवारी। जब गरीब के लिए मेयार और है, अमीर के लिए और है। इसी डिस्क्रिमिनेशन को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया था। इसी खुशहाली के लिए और जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए तो कायदे आजम ने यह मुल्क हासिल किया था। लेकिन इस मुल्क के नाम नेहाद मुल्लाओं ने, नाम नेहाद डब्बा पीरों ने इस मुल्क के लोगों के अंदर जो है वो सही इस्लाम आने नहीं दिया। इनको ऐसी ऐसी चीजों में डाल रखा है कि ये सही मुसलमान बने ही ना। ऊपर से फिर वो यही डब्बा पीर, यही मुल्ला, अच्छे लोग भी हैं उलमा में, अच्छे पीर भी होंगे, लेकिन यही लोग जो हैं ये इस माशरे की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं कि मजहब का सहारा देकर इनको सुलाया हुआ है। वरना जो जुल्म इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के साथ इस हुक्मरान अशराफिया ने समाजी, माशी तौर पर, इमरानी तौर पर किया हुआ है, इस जुल्म का बदला लेने के लिए अवाम जो है अगर उठ खड़ी हो तो ये हुक्मरान अशराफिया जो है इसको भागने का मौका ना मिले। लेकिन हम देखते हैं कि जॉब्स मिलती हैं सिफारिश पर। फैक्ट्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लेबर है, जिसने उस चीज को बनाकर उनको मुनाफा देना है, वो बेचारे मजदूर जो है वो रोटी पूरी करने से आजिज हैं। ये हालात जो है वो सामने है। मैं जो बात करना चाहता था कि वो खाना भी उनको ठीक मिल रहा है वहां पर, जाहिर है मुखैर हजरात भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट का बजट भी है, सब कुछ चल रहा है। जिस तरह हमारे प्रॉपर्टी के बड़े टॉन रियाज साहब जो है वो बड़े दस्तरखान चला रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, बड़े वेलफेयर का काम कर रहे हैं। जहाँ वो अरबों खरबों पे कमा रहे हैं वहां उसका 5% अगर चैरिटी में दे देते हैं तो ये तो इस तरह के बिजनेसमैन, सरमायादार, सियासतदान जो है वो अपने आप को अपना फेस सेविंग के लिए ये करते ही हैं, और ये हमारे सामने है सारा कुछ। इसलिए इस सारी कल की जो 4.5 घंटे का हमारा विजिट था जेल का, अपना आईजी जेल खाना जहाज से मुलाकात, जेल में जनाब जेलर साहब से मुलाकात, और वहां पर फिर हमने अपनी खिदमात कानूनी हवाले से और लेक्चर्स के हवाले से कि आपके एम्प्लॉइज को भी और यहाँ जो कैदी हैं उनके लिए लेक्चर्स के लिए भी हमने कुछ सिलसिला शुरू करने की बात की। मतलब ये है कि ये जेलों तक पहुंचे क्यों है, उसका जिम्मेदार ये हुक्मरान तबका है जो माशी नामहालियां जो है इनके लिए पैदा की गई हैं, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। समाज दुश्मन अनासर भी फिर ऐसे लोगों से फायदा उठाते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है। इधर वो देखते हैं कि लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जनाब घर बनाए हुए हैं, डीएचए बने हुए हैं, बैरियर टाउन बने हैं, बड़ी सोसाइटियों में लोग रह रहे हैं। दूसरी तरफ एक कमरे के घर में जनाब ना 15-15 जो है अफराद जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, और उनके पास फिर एक टाइम का खाना होता है, एक टाइम का नहीं होता। तो फिर वो क्या होगा? उनकी इंस्टिगेशन इसी तरफ होगी ना कि वो चोरी करें, किसी को रास्ते में लूट लें, किसी का मोबाइल छीन लें, जड़ का इलाज करें, रोजगार दें,
اس کے لیے اسلامی فلاحی ریاست کا لفظ جو ہمارے حکمران بولتے ہیں وہ کتابوں کی حد تک نہ ہو، اس کی امپلیمنٹیشن ہو۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر شخص کو اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہوگا اور اپنے طور پر کام کرنا ہوگا، ان حکمرانوں سے، ان ملاؤں سے، ان ڈبہ پیروں سے، ان نام نہاد سیاستدانوں سے، اور یہ جو حکمران اشرافیہ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سب سے کوئی امید نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتی نظام کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، سال ہا سال کیس چلتے ہیں۔ بہرحال اوورآل وہاں جو ضروریات، ذمہ داریاں، جو چیزیں تھیں وہ ساری پوری ہو رہی تھی جیل کے اندر، ہمیں بہت بہتر لگا۔ باقی ریگولیرٹیز ہوں گی، اب وہ میرا تو صرف ہمارا تو ایک اپنا پرسیپشن تھا، ہم دیکھنے گئے تھے، لیکن یہ کہ وہاں جیل تک جو لوگ پہنچے ہیں وہ کیوں پہنچے؟ کرمنالوجی کی ریسرچ کے حوالے سے بھی میرا ایک آرٹیکل ہے کہ کرائم ہوتا کیوں ہے، کرائم کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، ان کا معاشی گیپ جو ہے نا، ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا، وہ ہے معاشی گیپ، بعد میں پھر سماجی گیپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک کرے کہ اس ملک میں جو ہے وہ حالات بہتر ہوں، لوگوں کا معاشی معاملات ٹھیک ہوں، ان کا سماجی اور عمرانی رویوں میں پھر تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ مایوس تو نہیں ہیں ہم، لیکن ہمیں اس حکمران اشرافیہ کے خلاف علم بلند کرنا ہوگا۔ عوائزوں کے روپ میں چھپے مداریوں سنو، باغباں کے بھیس میں چھپے شکاریوں سنو، تمہارے کار پرفسوں کی آخری یہ شام ہے، خدا کی سرزمین پر خدا کا راج ہو، نہ کوئی حکمراں ہو نہ صاحب خراج ہو، تبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا کیا، محبتوں کی بس میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔